trivia of a report connected to this case. Prime Minister Modi will be in Ayodhya on 5th August as is known. But did you know that he first went to the temple town in the early 90s and was then a common Bharatiya Janata Party worker? And then a local photographer has managed to bring out some of those aspects. However, Prime Minister Modi currently is speaking to some young students in this hackathon. Listen into that. सॉल्व करके आज इस स्थिति एक दृश्य पैदा किया है। आपने पहला चैलेंज एक प्रकार से मैं कहूंगा सॉल्व कर लिया है। अब बाकी चैलेंज जो आपको मिले हैं उनको लेकर आप सभी नौजवान साथी क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ सुनाऊं उससे ज्यादा मैं आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। Now let me interact with students who have been working since morning in Smart India Hackathons, solving several challenges and try to know what are they doing. I would like to visit first center. Sri Krishna College of Technology, कोयम्बतूर। तो वहाँ के छात्र आपके साथ। A very happy evening to you, Mr. President, Prime Minister, sir. Vanakkam, vanakkam. Vanakkam, sir. It's a great honor to interact with you, sir. Now let me tell you about our problem statement, sir. It is from Jal Shakti Central Water Commission. We are supposed to generate a health card for embankments, sir. Many people don't know what embankment is. Let me tell you that. Embankments are the surrounding which is made of soil or concrete around water bodies whose main job is to prevent the water from flowing into the land, sir. But many often breaches occur in the embankments and thus it results in a huge loss of human life and property. So to prevent this, we have to generate a health card which regulates the properties of the embankments and thus stores many more data, sir. And we can prevent the breaches when we know when next breach is going to occur. So using machine learning for a period of time, we will be recording the number of breaches which will be occurring for that 1 year. And using that data with machine learning, we will be able to predict when the next breach will be occurring, sir. So when we know the actual date of the next breach, we will be able to help the people, and along with the government officials, we can take the necessary steps and prevent the loss of human life and property, sir. रेनफॉल प्रिडिक्शन और मैनेजमेंट, Yes, sir. मेरे सामने वैसे भी देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। Yes, आप sir. बताएं कि रेनफॉल प्रिडिक्शन को लेकर आप जो सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं वो उसके विषय में थोड़ा बता सकते हैं? For rainfall prediction, we can use the climatic changes which are present, sir. We can take the data from satellites and thus using hydrometeorological data and using satellite data, we will be able to predict it, sir. श्वेता, आपने और आपकी टीम ने एक बहुत ही बड़े चैलेंज को एड्रेस करने का बीड़ा उठाया है। Yes, sir. Yes, sir. हमारे जो ये तटबंध है इनकी हेल्थ की प्रेडिक्शन अगर हम सही से कर पाए तो बाढ़ के एक बड़े कारण पर हम काबू पा सकते हैं। आपको एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं समझता हूं तैयार करना चाहिए। Yes, sir. इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। जान माल के नुकसान को बचाने में इससे बहुत मदद मिलेगी और मैं समझता हूं कि आपकी टीम उस दिशा में सॉल्यूशन को उस फॉर्मेट में भी अगर तैयार करें तो शायद इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। Yes, sir. आदरणीय प्रधानमंत्री, नमस्ते। मेरा नाम है कुंदन। मैं पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर से हूँ। मेरी टीम का नाम है माइंड बेंडर्स। हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक चार्टबोर्ड को क्रिएट करना है जिससे यूजर इंटरेक्ट करके बात करके बोल सके कि उनको अगर कोई समस्या हो तो पुलिस से कंप्लेन कर सके।
तो हमने एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया है जिसपे लोग आके अपने प्रॉब्लम्स को बता सके, और हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग को यूज करके उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और ऐसे करके हम पुलिस और जो लोग हैं उन दोनों के बीच में का जो गैप है वो ब्रिज करेंगे। इससे हम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं कि अगर जो जनता है उनको अगर कोई डर हो पुलिस से, तो वो ना डरे, वो पुलिस को अपना दोस्त समझे और पुलिस के पास जाए। कुंदन, आपको कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है? इनफैक्ट सर, हाँ हाँ सर, जाना पड़ा है सर। मेरा मोबाइल एक बार खो गया था। देखिए, आपने इतना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ। इज दिस अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेज ऑल्सो? हाँ सर, अभी के लिए तो हम इंग्लिश पे फिक्स किए हुए हैं, पर हम अगर डेटा मिल जाए तो हम इसको सारी लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। डू यू हैव वॉइस इनपुट फैसिलिटी एज वेल एज ऑल पीपल में नॉट बी एबल टू राइट वेल? नहीं सर, उस पर हम अभी काम नहीं कर रहे हैं सर, वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सर। चलिए, ऑल्सो प्लीज यूज reassuring language, because these people using this chatbot will often be in trouble. Giving artificial intelligence a human touch is also very important. हमारी पुलिसिंग को इफेक्टिव बनाने के साथ साथ इंटरेक्टिव और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इससे जुड़े इनोवेशन को आप और आपकी टीम आगे बढ़ाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम अगले सेंटर एर्नाकुलम जाएंगे, वहां एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Thank you for this opportunity. Myself, Govind T, from the team Mystica, pursuing biomedical engineering at Saharadaya College of Engineering and Technology. The problem statement is connected with TEA? TEA? I'm connected with TEA. No, sir. It took time. Yeah, Govind, carry on. Okay, sir. The problem statement that we are identifying is by GE Healthcare to develop a virtual assistant for medical devices. So, the virtual assistant that we are developing will help the technologist in such a way that the technologist can respond and make decisions in much quicker way during the golden hours during the situation. And in the current scenario, where the demand of life-saving equipments are really high, especially like ventilators, so we believe that we can deploy our virtual assistant in those scenarios where, despite of location and any other based connectivity issues, our virtual assistant will be able to maintain and equally calibrate and ensure that no patient will be affected due to the unwanted issues happening in the ventilators and other life-saving equipment. So here we are using the various aspects of machine learning and artificial intelligence so that our virtual assistants develop day by day by learning each things. गोविंद, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, इस प्रकार के काम में आपने अपना मन लगाया। देखिए, हेल्थ केयर में तो डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। भारत में डेटा आधारित इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम के विकास में और उसके कारण गरीब से गरीब तक, दूर दूर के गांवों तक एक एफोर्डेबल और वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस हम पहुंचा सकते हैं, और हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा माध्यम है। आयुष्मान भारत के तरह मैं समझता हूं कि यह प्रयास भी
बहुत सफल होगा। गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बड़े अस्पतालों से जोड़ने की योजना पर आज भारत में काम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटर्स, मैं समझता हूं कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, आप इसमें बहुत वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप काम को गति देते हैं और मैं इसलिए गोविंद आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और कौन बात करेगा? Good evening, sir. गुड इवनिंग। I feel really honored for this opportunity. Myself, Rachel Mary Matthew, from Instrumentation Department of Federal Institute of Science and Technology. I'm representing the team Mega Minds. Sir, our product is a solution for cleaning reusable cloth bags, and it is also a health monitoring device. Reusable Cloth bags. And it is also a health monitoring device for menstruating women. Sir, it is really helpful as it helps in reducing the plastic sanitary waste generated, and also it has a suitable instrumentation system that can detect heavy bleeding, which might in turn result in diseases like PCOD, fibroids and cancer. It is beneficial to each and every woman as it helps in early detection of these diseases, which if not detected early can cause serious health issue. So, and it is also really helpful for keeping a menstrual hygiene, proper menstrual hygiene. Since we are speaking of poor women, they also need to know further information. Is there a way you can empower them with information on what to do next? Sir, this product, like the amount spent actually, every woman actually spends almost 150 rupees a month. So considering a family, assuming that 30 years is a menstrual bleeding duration for every woman, the cost sums up to around 1,50,000. So, sir, our product cost is approximated to rupees 5,000. So, sir, for rural area women, they can also, this product is really helpful for such women also. Well, विमेन हाइजीन को लेकर हमारे यहाँ जागरूकता बहुत देर से आई है। बीते 6 साल में इसको लेकर सरकार और सोसाइटी दोनों के स्तर पर व्यापक काम देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी होगी कि आज देश भर के जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपये में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स के जिस सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं, उससे करोड़ों गरीब बहन बेटियों को तो लाभ होगा ही, एनवायरमेंट को भी लाभ होगा। और इसलिए एक तो एक प्रकार से आपने सामाजिक सुख दुख की चिंता भी की है। आपने जो ट्रेनिंग पाई, जो शिक्षा पाई, उसका एक बहुत ही सार्थक आप उपयोग कर रही हैं। आपकी और आपकी पूरी टीम को और आपको जो गाइड कर रहे हैं उन सबको भी मैं इस महत्वपूर्ण काम के लिए बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good evening, sir. Thank you so much for this opportunity. My name is Jagannath Bhatt. I'm a 4th year BTech student, and I'm representing Team Hexify from Adi Shankara Institute of Engineering and Technology, Kaladi. Our product statement was provided by the government of Sikkim for the schools in Sikkim. They need a tool for teachers to collect data of students such as marks and attendance and send those data to concerned government officials. However, schools in Sikkim do not always have a stable internet connection. So we proposed a solution where it's a tool that helps the teachers collect these data
and it is stored safely in their devices, which can be a laptop or a smartphone. And even if there is no internet connection, it will be safely present in the devices. And once the internet connection is stable, the data will be sent to the concerned officials automatically. This helps them focus more on their teaching tasks rather than these tedious tasks such as collecting data and sending it to the government officials. जगन्नाथ, आप स्वयं स्टूडेंट होते स्कूल में और किसी ने सॉल्यूशन दिया होता, क्या लगता है आपको? That would be better. Well, apart from attendance and marks, does this database have any fields to capture the interest, quality, or strength of student apart from this marks? Yes, sir. They can also use this for taking study materials and all that, so they don't have to depend on an internet connection to get the study materials. So they can keep all this offline and make the system, since the system works offline, we can bring more and more features into the system. And even if it is a student in an area that has poor internet connection, that student will be able to use the system properly. अब देश के पहाड़ों और दूसरे रिमोट एरिया में बाकी डेटा के कलेक्शन में भी कभी कभी कनेक्टिविटी की भी समस्याएं आती हैं। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाने का बहुत जोरों से काम चल रहा है, कभी कभी देर भी लगती है। जैसे पंचायत हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट हो, क्या इनके लिए भी इस प्रकार का समाधान हम स्कूल और एजुकेशन से बाहर थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं क्या? Yes, sir. We can also use this for employment. We can also use this in professional areas as well, because even they require training and all that. Even, for example, especially during this pandemic, more people are working from home and they're also getting trained from home. So this can also be useful for them. देखिए जगन्नाथ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एर्नाकुलम में हैं और सोच रहे हैं सिक्किम के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट के संबंध में। देखिए, जब ये नॉर्थ ईस्ट के लोग और सिक्किम के लोग ये जानेंगे कि दूर एर्नाकुलम में कोई नौजवान नॉर्थ ईस्ट की समस्या के समाधान के लिए मेहनत कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं इसकी कितनी बड़ी ताकत है। देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको एक बहुत बड़ी ताकत इस बात से मिल रही है। और इसलिए जगन्नाथ और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी अगले सेंटर हैदराबाद में MLR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम अमृता है। मैं मेरा टीम द हैकस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम सब मातृश्री इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद से हैं और मैं MLR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर से इंटरेक्ट कर रही हूँ। हमारा प्रोजेक्ट रियल टाइम बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन पे है। मैं हमारे प्रोजेक्ट को एक सिचुएशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। अगर मास्क के कालखंड में क्या करोगे? यस सर, एक्चुअली हम तो जब मास्क पहना हो ऐसी स्थिति में फेस आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? यस सर, हमारे आईज के बीच में जो डिस्टेंस है, नोज का शेप, चीक बोन्स, ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। अगर हम मास्क से थोड़ा पार्ट ऑफ फेस को कवर भी करते हैं, अभी भी थोड़ा पार्ट ऑफ फेस एक्सपोज्ड है जिनसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने हमारे मॉडल को पूरे फेस के साथ ट्रेन किया है। अब हमें अगर इस मास्क के प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमें इस आधा इंफॉर्मेशन से ही ट्रेन करके एक्यूरेसी को बढ़ाना है। चलिए, मेरी आपको बधाई है। मुझे विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम डिटेक्शन में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यस सर। नेक्स्ट कौन है? नमस्कार सर,
मेरा नाम जतिन है। मैं टीम वर्चुअल पीएस KMIT के थ्रू आ रहा हूँ। मैं MLRIT कॉलेज में आपसे बात कर रहा हूँ। सर, हमारा प्रोजेक्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन बिल्ड करना है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है। तो इसमें हमने एक 3D ऑग्मेंटेड रियलिटी वर्चुअल ऑफिसर का इस्तेमाल किया है, जिसने अपने पीड़ित व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है और FIR के सभी मुख्य विवरण लेके उनके साथ एक FIR बनाता है जो बहुत सुरक्षित और सुचालित है। इसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो भी आज जो रिलेशनशिप अपने पुलिस डिपार्टमेंट और जनता के बीच में है उसको परिवर्तन कर सकते हैं, और जो भी महिला और बच्चों के प्रति अन्याय हो रहा है उनके प्रति भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इससे हम एक ऐसी कॉन्सेप्ट और ऐसी विजन को ला सकते हैं जो बहुत सारे और आप भी चाहते हैं, क्राइम फ्री इंडिया। दैट इज द थिंग विच वी वांट टू ब्रिंग इनटू द सोसाइटी सर। एंड वी हैव यूज्ड आपकी टीम को सचमुच में बड़ा प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं। क्या बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा रियल टाइम ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम डिजाइन हो सकता है जो स्कूलों, दफ्तरों और स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो? स्कूल बस हो, कैब्स हो, ऑटो हो, इनको पुलिस कंट्रोल रूम के साथ रियल टाइम कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, हमने इसके बारे में बताना तो मुझे खुशी होगी अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। जी सर, हमने इसके बारे में सोच के विचार करके हमने जो भी Amazon डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है उसके थ्रू जो भी फंक्शंस और जो भी मशीन लर्निंग किट्स और जो भी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो भी एल्गोरिथम से